Hello students, this is Subhendu Das, your physics mentor, and this is our lesson number 5 or session number 5 of our chapter electric charges and fields that is available in class 12 CBSE physics as well as CHSE physics also. So up to lecture number 4 we have completed our most beautiful session that is based upon the Coulomb's force or Coulomb's law, and we have solved certain numericals regarding our induction, conduction, contact, that is friction part. That part already we have covered, and based upon the Coulomb's force we have solved certain numericals. And in this lecture also basically we will deal with certain numericals along with some important note points. Okay, so without any delay, let's start our topic. So first of all, in today's lecture we will discuss some note point actually. We know first point is graph between f versus 1 by r square. This is our first content. So how can we draw f versus 1 by r square graph from the Coulomb's force? So we know f is equal to how much? K q1 q2 divided by r square. So now we can write it as f is equal to k q1 q2 into 1 by r square plus 0, and we can compare it with y is equal to mx plus c, and comparing this thing we will get the slope value is k q1 q2, and along x-axis we have to take 1 by r square, and the graph intercept will be 0, and along y-axis we have to take force. So simply we can draw the graph in this way. So along x-axis we have to take f, and along y-axis we have to think about 1 by r square. And here we came to know that the slope is equal to k into q1 into q2. That means we can say slope is directly proportional to product of two charges. Slope is directly proportional to product of two charges. And इसको याद रखो, देखो तो प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस जितना ज्यादा होगा ना, स्लोप उतना ही ज्यादा होगा. So more the product of q1 and q2, that means more is the slope. That's the point. And और एक चीज क्या है, देखो ये q1 पॉजिटिव एंड q2 चार्ज पॉजिटिव होने से इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? पॉजिटिव. एंड ये दोनों नेगेटिव होने से क्या होगा? उन दोनों का प्रोडक्ट भी पॉजिटिव मिलेगा हमको. एंड q1 पॉजिटिव q2 नेगेटिव होने से इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? नेगेटिव मिलेगा. ये नेगेटिव ये पॉजिटिव होने से प्रोडक्ट क्या होगा? नेगेटिव होगा. तो उसी हिसाब से वी कैन डिटरमाइन if the charges are like charges, स्लोप क्या होगा? पॉजिटिव होगा, नहीं तो स्लोप नेगेटिव होगा. तो पॉजिटिव नेगेटिव 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 पॉजिटिव का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? नेगेटिव. So now as for the following process we can draw the graph like this. ये भी एक ग्राफ हो पाएगा, नहीं तो ये भी हमारा ग्राफ हो पाएगा. कीप दिस थिंग इन माइंड. तो ये कब होगा? देखो ये तुम्हारा θ1 सपोज, ये θ2, एंड ये मिल रहा है तुमको ये फर्स्ट क्वाड्रेंट पे है ना. तो tan का वैल्यू क्या है फर्स्ट क्वाड्रेंट पे? पॉजिटिव. तो स्लोप क्या है हमारा? पॉजिटिव. एंड पॉजिटिव होने से क्या होगा? इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? पॉजिटिव. इन दोनों का प्रोडक्ट भी हुआ होगा पॉजिटिव. दैट मीन बोथ द चार्जेस आर लाइक चार्जेस. एंड लाइक चार्जेस में क्या है? रिपल्सिव फोर्स इज इन्वॉल्व. रिपल्सिव फोर्स इज इन्वॉल्व बिटवीन द टू चार्जेस. एंड नीचे वाला ग्राफ क्या शो कर रहा है? अट्रैक्टिव फोर्स का. I think this question is clear to all of you. So in this way we can draw the graph of f versus 1 by r square. तो इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन भी अवेलेबल है. तो क्वेश्चन में क्या पूछेगा तुमको? देखो तो क्वेश्चन में पूछेगा तुमको ड्रॉ
सपोज क्वेश्चन ये पूछ रहा है तुमको, ड्रॉ एफ वर्सेस 1/r² ग्राफ फॉर फॉलोइंग पेयर्स, ऑफ चार्जेस। पहला क्वेश्चन क्या है, 6 कूलम, 3 कूलम, एंड बी में पूछा है वो 5 कूलम, -7 कूलम। देखो ये जो दो चार्ज दिया है ना, दे आर लाइक चार्जेस, दैट मींस रिपल्सिव फोर्स इज इन्वॉल्वड बिटवीन देम, एंड इसमें अनलाइक चार्जेस आर अट्रैक्ट ईच अदर, दैट मींस अट्रैक्टिव फोर्स इज इन्वॉल्वड इन द सेकंड बिट। एंड इसमें देखो, इसमें जो Q1 एंड Q2 का प्रोडक्ट ये आ रहा है 18, इसमें क्या आ रहा है, मैग्नीट्यूड आ रहा है क्या, Q1 Q2 का प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है, 35 आ रहा है। तो उसी हिसाब से बेस्ट ऑन दिस थिंग वी हैव टू ड्रॉ द ग्राफ एक्चुअली, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो ऑल ऑफ यू पे योर अटेंशन फॉर द ग्राफ। So here f is taken and along x axis you have to take 1/r², this is origin, and ये तुम्हारा एक ग्राफ होगा, एंड दूसरा क्या ग्राफ होगा, देखो ये नेक्स्ट ग्राफ होगा। तो ये किसके लिए आ रहा है, देखो दिस इज फॉर रिपल्सिव फोर्स, तो व्हिच पेयर, 6 कूलम एंड 3 कूलम का। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 6 कूलम, 3 कूलम। ये किसके लिए, 5 कूलम, -7 कूलम। देखो कौन सा फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स। और क्या शो कर रहा है, देखो इसमें प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस कितना है, 18। तो ये देखो एंगल सपोज θ1 एंड ये एंगल क्या है, θ2। इसमें जो प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस क्या है, -35 का मैग्नीट्यूड क्या है, 35, तो इसलिए वो एंगल ज्यादा होगा। तो फोकस अपॉन दिस थिंग। तो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट नोट पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो नेक्स्ट नोट पॉइंट, नॉट क्वेश्चन, नेक्स्ट नोट पॉइंट इज नोट पॉइंट 2। इंड्यूसिंग चार्ज एंड इंड्यूस्ड चार्ज, इसके बारे में तो हमको पता है एक्चुअली, इंड्यूसिंग चार्ज एंड इंड्यूस्ड चार्ज। ओके, यहाँ पे जो ग्रीन कलर स्फीयर दिखाई दे रहा है ना, लेट इट इज योर इंड्यूसिंग चार्ज, ग्रीन कलर स्फीयर इंड्यूसिंग चार्ज। एंड जो व्हाइट कलर चार्ज बॉडी दिखाई दे रहा है तुमको, ये क्या है, चार्ज बॉडी उसके पास नहीं है, तो इसमें क्या अपीयर होगा बोलो, यहाँ पे इंड्यूस्ड चार्ज अपीयर होगा, नियर एंड पे है ना। तो लेट दिस इज योर इंड्यूसिंग चार्ज, and what is the inducing charge available, in this case let it be Q। and यहाँ पे जो ये वाला चीज डेवलप हो रहा है, इज योर Q इंड्यूस्ड चार्ज, ये तुम्हारा इंड्यूस्ड चार्ज बिकॉज ऑफ इंडक्शन प्रोसेस ऐसा हो रहा है। तो माय क्वेश्चन इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस इंड्यूस्ड चार्ज इन टर्म्स ऑफ इंड्यूसिंग चार्ज। तो याद रखो इसको Q डैश, और इसको हम लोग लिखेंगे Q इंड्यूस्ड। तो वैल्यू क्या है, -Q इंटू 1 - 1/εr। यहाँ पे माइनस साइन का मतलब क्या है, नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है बोलो, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स आवर इंड्यूस्ड चार्ज नेचर is opposite to the nature of inducing charge, is opposite to the nature of inducing charge. This is the meaning of this negative sign। ये चीज याद रह गया, सेकेंड नोट पॉइंट। नेक्स्ट वी विल डिस्कस थर्ड नोट पॉइंट। व्हाट इज दैट, इन थर्ड नोट पॉइंट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन वन न्यू थिंग। नोट 3, सपोज ये सोप बबल, यस ऐसे इसको मान लो, ये एक सोप बबल,
एंड इसके सरफेस के ऊपर क्या देने से, चार्ज स्प्रेड करने से उसका रेडियस क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। इफ चार्जेस आर स्प्रेड ऑन द सरफेस ऑफ ए सोप बबल देन इट्स रेडियस क्या होगा, देन इट्स रेडियस इंक्रीजेस, रेडियस इंक्रीजेस। ये भी एक नोट पॉइंट, इफ चार्जेस आर स्प्रेड over the surface of a soap bubble, then its radius increases, then its radius increases. Okay, and next final note point देखो, ये last note point, note point 4. Remember, on increasing the temperature what will happen to the dielectric constant or relative permittivity, तो क्या होगा, वो डिक्रीज होगा। तो नोट पॉइंट 4 में ये लिखोगे, on increasing temperature, on increasing temperature dielectric constant decreases, dielectric constant of medium decreases. So this is about our 4 golden points in relation to Coulomb's force or Coulomb's expression. Okay, ये हो गया। Next we will discuss some questions and wait up to our next lecture number 6 or session 6. In that lecture we will discuss the principle of superposition and numericals related to that content. तो यहाँ पे अभी क्वेश्चन को सॉल्व करना है हमको, वन बाय वन वी विल डिस्कस सम वेरी इंपॉर्टेंट एंड गुड क्वेश्चंस। आई थिंक स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन देखो, टू pellets each with a charge of 1 microcoulomb are located 3 centimeter apart from air. What is the electric force between them? तो ये है तुम्हारा Q1 चार्ज, is your 1 microcoulomb and this is your Q2 charge, this is also 1 microcoulomb and the distance of separation between them is r is equal to 3 centimeter. So directly we can apply the Coulomb's force formula, that is F is equal to K Q1 Q2 divided by r square. तो K का वैल्यू क्या है, 9 इंटू 10 टू द पावर 9, Q1 क्या है 1 माइक्रो मीन्स 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम, Q2 आल्सो 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम डिवाइड बाई r स्क्वायर। 3 सेंटीमीटर को हम लोग लिखेंगे 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर का होल स्क्वायर। तो न्यूमरेटर का आंसर क्या हुआ, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 माइनस 12 दैट इज माइनस 3 डिवाइड बाई डिनोमिनेटर पे 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4, तो इधर कैंसिल हो जाएगा। तो 10 टू द पावर माइनस 3 प्लस 4 ये कितना होगा, ओनली 10 न्यूटन। So this is the final answer of this given question. So 10 Newton is the involved force between these two charges as per the data available in the given question. Okay. Next proceed towards the next question. देखो क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या दे रहा है एक्चुअली, इधर लिखा है टू pellets with a charge of 1 microcoulomb are located 3 centimeter apart from water. यहाँ पे मीडियम चेंज हो रहा है, बाकी प्रीवियस एग्जाम्पल पे और प्रीवियस न्यूमेरिकल पे जो भी डाटा था ना वही सेम डाटा यहाँ पे भी अवेलेबल है। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन देम एंड के और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर इट इज गिवन 81। तो वी नो एफ मीडियम का आंसर क्या होगा, एफ मीडियम, यहाँ पे एफ एयर था ना, यहाँ पे एफ मीडियम, उसका आंसर क्या है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इप्सिलॉन एम इंटू Q1 Q2 डिवाइड बाई, एंड इधर देखो ये जो चीज इसका वैल्यू क्या है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 डिवाइड बाई इप्सिलॉन एम कितना 81 दे रहा है, Q1 वैल्यू 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू Q2 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम, आर स्क्वायर 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर, एंड इधर जो भी मैं लिखा हूँ ना ये वाला चीज, इसका आंसर अभी क्वेश्चन नंबर 1 में कितना मिला था 10, तो 10/81 न्यूटन इज द आंसर of the second question. Next come to our third question.
So 2 point charges repel each other with a force of 100 Newton, and one of the charge is increased by 10% and other charge is reduced by 10%. Then question is asking the new force of repulsion at the same distance should be dash. कोई distance of separation maintain है अभी previous में जो भी था, okay, recent case में भी same to same. So suppose यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ this is suppose charge Q1 and at a separation R Q2 is present. So what is the involved force between them? That is K Q1 Q2 divided by R square. And according to question it is mentioned this is your 100 Newton. This is your 100 Newton. And one of the charge is increased by 10%. अभी मैं बोल रहा हूँ let Q1 dash 10% इंक्रीज हुआ है प्रीवियस के कंपैरिजन पे. तो प्रीवियस क्या था Q1 प्लस 10% ऑफ Q1, ये है उसका एक्सप्रेशन. एंड Q1 प्लस 10% मीन्स 10/100 इंटू Q1. 10/100 को हम लोग लिखेंगे 1/10. तो दैट मीन्स Q1 प्लस 0.1 Q1. तो Q1 कॉमन ले जाने से 1 प्लस 0.1 1.1 Q1. इट इज योर Q1 डैश. लाइक दिस यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ Q2 डैश. 10% डिक्रीज हो गया तो जितना था Q2 माइनस 10% ऑफ Q2. तो ये होगा हमारा Q2 माइनस 10 डिवाइड बाई 100 ऑफ Q2. तो 1 माइनस 0.1 इंटू Q2, ये कितना हुआ 0.9 Q2. ये किसका वैल्यू Q2 डैश का वैल्यू मिल गया. एंड अभी सेपरेशन सेम टू सेम. तो न्यू फोर्स कितना होगा अभी F डैश इज इक्वल टू K Q1 डैश Q2 डैश डिवाइड बाई R स्क्वायर, नॉट R डैश. R डैश इक्वल टू R इधर. तो K Q1 का वैल्यू कितना 1.1 Q1 इंटू 0.9 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर. तो 1.1 को मैं लिख रहा हूँ 11/10. देन 0.9 9/10. रिमेनिंग क्या है K Q1 Q2 by R square. And what is K Q1 Q2 by R square? That is our 100 Newton. तो ये हो गया तुम्हारा 99/100 इंटू कितना मिला हमको 100. तो कैंसिल होने के बाद दिस इज इक्वल टू 99 न्यूटन. तो यहाँ पे हमारा 99 न्यूटन इज आवर करेक्ट आंसर. आई थिंक इट इज क्लियर. यस. So in this way we have to proceed the numerical. Next question पे चलो. तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो. A charge of 2 coulomb is placed on the ground. Okay. यहाँ पे एक 2 coulomb चार्ज अवेलेबल है and it is placed on the ground. ये तुम्हारा 2 coulomb चार्ज and it is placed on the ground. 2 coulomb. Then other particle having charge of 4 coulomb mass and 2 kg. Sorry, 4 coulomb if mass 2 kg is placed above the first charge in air. Okay, इसके ऊपर और एक चार्ज अवेलेबल है, ये वाला चार्ज है ठीक ऊपर और एक चार्ज अवेलेबल है. देखो इसका मास कितना दे रहा है तुमको 2 kg दे रहा है एंड चार्ज कितना है 4 कूलम. एंड कितने दूरी पर है अभी लेट द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन दिस देम लेट इट बी r. डिस्टेंस सेपरेशन कितना हुआ r दूरी पर है. एयर मीडियम इन बिटवीन देम इज प्रेजेंट. एट व्हाट डिस्टेंस विल द टू चार्ज लाई इन इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या है नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट विल बी 0. नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल विल बी 0. तो अभी 2 kg दे रहा है मीन्स उसके ऊपर कौन सा फोर्स अप्लाई हो रहा है उसका वेट ही अप्लाई हो रहा है अभी. तो उसका वेट का डायरेक्शन क्या होगा वर्टिकली डाउनवर्ड. देखो ये वेट कितना उसका mg. mg मीन्स 2 into 10 दैट इज योर 20 न्यूटन. तो बिकॉज ऑफ द वेट ओके ये क्या होगा ये तो नीचे आ जाएगा. लेकिन एज पर द क्वेश्चन इट इज इन इक्विलिब्रियम. दैट मीन्स ये फोर्स को कैंसिल करने के लिए और एक फोर्स अवेलेबल होगा. अवेलेबल होना ही चाहिए नहीं तो इक्विलिब्रियम नहीं होगा. वो फोर्स का डायरेक्शन क्या है दिखाई दे रहा है तुमको ये वाला फोर्स. दिस विल बी द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और कूलम्ब फोर्स इन बिटवीन द टू चार्ज. So according to question 2 kg
or 4 coulomb charge is in equilibrium. According to question, 4 coulomb charge is in equilibrium. It is in equilibrium. इसका मीनिंग क्या है? Which implies Fe will be equal to 20 and Fe का वैल्यू कितना? K Q1 Q2 by r square that is equal to 20. तो K का वैल्यू रेस्पेक्टिव वैल्यू पुट करो. 9 into 10 to the power 9. Q1 का वैल्यू कितना? 2 कूलम. 2 4 कूलम. यूनिट तो नहीं लिखना चाहिए ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कैलकुलेशन. 2 into 4 डिवाइड बाई r स्क्वायर इज इक्वल टू 20. तो r का वैल्यू यू हैव टू कैलकुलेट. तो यहाँ पे देखो 2 पे कट करो 10 हो गया. यस एंड यहाँ पे 10 कैंसिल होने से यहाँ पे पावर कितना बचेगा? 8. तो न्यूमरेटर सॉरी एलएचएस पार्ट में क्या हुआ? 9 into 4 36 into 10 to the power 8 इज इक्वल टू r स्क्वायर इंटू 1 दैट इज r स्क्वायर. क्रॉस मल्टीप्लाई करने से सो r कितना मिला? उसका रूट ओवर 6 into 10 to the power 4 and unit is meter. So 6 into 10 to the power 4 meter. This should be the separation between the two charges or the charge 4 coulomb to lie in equilibrium. देखो कितना आसान क्वेश्चन. So step by step we have to follow. We have to follow and after that finally we will get the answer as per the given data. Okay. Next question. यहाँ पे दे रहा है टू पार्टिकल्स A and B having charge 8 into 10 to the power minus 6 coulomb and 2 into 10 to the power minus 6 coulomb respectively are held fixed with a separation of 20 centimeter. Where should a third charge particle C be placed so that it does not experience a net force? Okay. So question के हिसाब से भी you have to draw the diagram actually. Let us consider this is your one charge and this is another charge. Yes. तो ये क्या तुम्हारा A, this is your B and third charge particle कहाँ पे होगा पता नहीं. इन दोनों के बीच में सेपरेशन कितना दे रहा है? 20 सेंटीमीटर. तो 20 सेंटीमीटर इज द सेपरेशन बिटवीन. ये था हमारा 20 सेंटीमीटर. ये इसका वैल्यू क्या है? 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम एंड इसका वैल्यू 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6. देखो यहाँ पे पूछ रहा है वेयर शुड बी ए थर्ड चार्ज पार्टिकल बी प्लेस्ड एट पॉइंट सी सो दैट इट डज नॉट एक्सपीरियंस ए फोर्स. दैट मीन्स वो न्यूट्रल पॉइंट के बारे में ही पूछ रहा है. न्यूट्रल पॉइंट क्या है? जिस पॉइंट पे कोई भी पार्टिकल प्लेस करो उसके ऊपर नेट फोर्स कितना मिलेगा? 0. तो इसका शॉर्टकट ट्रिक याद रखो. व्हेन यू विल सी बोथ द चार्जेस आर लाइक चार्जेस तो यहाँ पे प्लस प्लस साइन नहीं तो माइनस माइनस भी कंसिडर करो. When both the charges are like charges, न्यूट्रल पॉइंट क्या होगा? इन दोनों के बीच में ही कोई एक पॉइंट होगा. यस एंड वो पॉइंट का खासियत क्या है? दैट न्यूट्रल पॉइंट ओके इज क्लोजर टू द मैग्नीट्यूड ऑफ स्मॉलर चार्ज. इसको मैं लिख रहा हूं देखो. व्हेन बोथ चार्जेस आर लाइक चार्जेस, व्हेन बोथ चार्जेस आर लाइक चार्जेस then neutral point lies closer to then neutral point lies in between two charges, in between two charges and it is always closer to the magnitude of smaller charge. It is always closer to the magnitude of smaller charge. तो भी याद रखो. देखो इसको याद रखने से कितना आसान से हम लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं. तो लेट अस कंसीडर ये इन दोनों में से मैग्नीट्यूड किसका कम है? देखो इसका मैग्नीट्यूड लेस है तो इसका क्लोजर है. लेट द थर्ड चार्ज पार्टिकल इज Q and it is placed at C. Yes.
and we have to find the location, and let the C point is at a distance x centimeter, is at a distance x centimeter from the magnitude of smaller charge. ये x सेंटीमीटर होने से इसका डिस्टेंस कितना होगा, ए का लोकेशन विथ रेस्पेक्ट टू सी पॉइंट, दैट विल बी 20 माइनस x सेंटीमीटर। अरे ये x सेंटीमीटर होने से ये तो टोटल 20 सेंटीमीटर, ये रिमेनिंग कितना होगा 20 माइनस x सेंटीमीटर। वेरी गुड। तो क्वेश्चन के हिसाब से दिस पार्टिकल Q विल नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स। इससे देखो कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, देखो तो पहले ये जो पॉजिटिव चार्ज दिखाया जा रहा है ये Q को क्या करेगा, अभी रिपेल कर देगा पक्का। दिस इज द फोर्स ड्यू टू ए। मैं लिख रहा हूं इसको शॉर्टकट में कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, एफ ए वेक्टर, फोर्स ऑन पार्टिकल Q ड्यू टू चार्ज ए। एंड ये Q को देखो, ये जो पॉजिटिव चार्ज इसको भी रिपेल करेगा इधर, रिपेल करने से क्या मिलेगा हमको, दिस विल बी आवर एफ पी वेक्टर। यस, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एफ ए एंड एफ सी दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, बराबर होना चाहिए, तभी जाकर नेट फोर्स कितना होगा पार्टिकल सी पे, पार्टिकल क्यू के ऊपर 0 ही होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड मस्ट बी इक्वल टू एफ बी वेक्टर मैग्नीट्यूड। तो इसी हिसाब से प्रोसीड करेंगे हम लोग। देखो एफ है, दैट मीन्स के दोनों के बीच में फोर्स कितना होगा, एफ इक्वल टू के इंटू एक चार्ज तुम्हारा Q, दूसरा चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है 8 इंटू 10 टू द पावर -6 डिवाइड बाई डिस्टेंस कितना है उन दोनों के बीच में 20 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर भी देखो 20 माइनस एक्स होल स्क्वायर इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर लिख रहा हूँ बस, इज इक्वल टू एफ बी। यहाँ पे मैं कन्वर्ट नहीं किया हूँ उसको मीटर पे, जरूरी नहीं, कैसे क्यों जरूरी नहीं है, वेट, ये एफ बी का वैल्यू क्या होगा के क्यू इंटू दिस चार्ज बाई एक्स सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, तो के इंटू क्यू, नेक्स्ट चार्ज कितना 2 इंटू 10 टू द पावर -6 डिवाइडेड बाई ये एक्स सेंटीमीटर का होल स्क्वायर क्या है एक्स स्क्वायर इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो दोनों साइड से सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया, और क्या कैंसिल हो रहा है, देखो और क्या कैंसिल हो रहा है, के क्यू 10 टू द पावर -6 के क्यू 10 टू द पावर -6, यहाँ पे 2 कैंसिल होने से 4 मिलेगा। तो आंसर बचा हमारा 4 डिवाइडेड बाई 20 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई एक्स स्क्वायर। अभी दोनों का स्क्वायर रूट ले जाओ, तो 2 डिवाइडेड बाई 20 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 बाई एक्स, 2 डिवाइडेड बाई 20 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 बाई। तो आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन व्हाट यू विल गेट 2x इज इक्वल टू 20 माइनस एक्स एंड विच इम्प्लाइज ये x इधर आने से 3x will be equal to 20 and x is equals to 20 by 3। x को हम लोग क्या माने थे यूनिट सेंटीमीटर पे, तो दिस इज 20 by 3 सेंटीमीटर। एंड ये जो डिस्टेंस अभी मिल रहा है दिस इज द लोकेशन और पोजीशन ऑफ C फ्रॉम व्हिच चार्ज, फ्रॉम 2 इंटू 10 टू द -6 कूलम चार्ज। वो पूछेगा 8 इंटू 10 टू द -6 कूलम से कितना डिस्टेंस होगा, आफ्टर दैट यू हैव टू कैलकुलेट 20 माइनस एक्स, दैट मीन्स 20 माइनस 20 बाई, ओके, उसी हिसाब से कैलकुलेट करो। तो ये क्वेश्चन समझ में आया बस। अभी मैं उसका देखो और एक इम्पोर्टेंट पार्ट में सॉल्व कर रहा हूँ, इसको याद रखो बस, ये जो पॉइंट when both charges are like charges then neutral point lies in between the two charges and it is closer to the magnitude of smaller charge। so what will happen when both charges are unlike charges, बोथ चार्जेस अनलाइक चार्ज होने से कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, देखो यहाँ पे तुमको दिखाई देगा दोनों क्वेश्चन सेम टू सेम डाटा अवेलेबल है, लेकिन डिफरेंस क्या है, देखो उसमें क्या था 8 इंटू 10⁻⁶, यहाँ पे +2 था, यहाँ पे मैं लिखा हूँ -2 इंटू 10 टू द पावर -6। वही सेम सेपरेशन पे है, देखो 20 सेंटीमीटर व्हेयर शुड थर्ड सर्टिफिकेट C be placed so that it must remain in equilibrium or it does not experience a net electric force, that means it should be in equilibrium। so how to find the location, सेम टू सेम प्रोसेस में देखो हम लोग सॉल्व करेंगे। अभी दिस इज सपोज चार्ज, ये तुम्हारा एक चार्ज हुआ,
एंड ये दूसरा चार्ज हो गया। क्लियर? एंड तीसरा चार्ज पार्टिकल यहाँ पे होगा देखो, एंड इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है देखो, इन दोनों के डिस्टेंस अभी 20 सेंटीमीटर ही है। सेपरेशन बिटवीन देम इज 20 सेंटीमीटर। दिस इज ए, एंड इधर क्या है 8 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। इधर क्या है -2 इंटू 10⁻⁻6। So when both charges are unlike charges, तो इन दिस केस न्यूट्रल पॉइंट इन दोनों के बीच में कोई भी पॉइंट नहीं होगा, ये बाहर होगा। ओके, आउटसाइड होगा। आउटसाइड मीन्स ये रीजन पे हो सकता है वो पॉइंट, नहीं तो ये वाला रीजन पे कोई पॉइंट हो सकता है। तो हम लोग कैसे फाइंड आउट करें? क्या ट्रिक क्या है? सेम टू सेम। अभी हमको पता चल गया वो आउटसाइड ही होगा, एंड ऑलवेज इट इज क्लोजर टू मैग्नीट्यूड ऑफ स्मॉलर चार्ज। तो इन दोनों में से किसका मैग्नीट्यूड लेस है? देखो ये चार्ज का मैग्नीट्यूड लेस है। दैट मीन्स द न्यूट्रल पॉइंट, और हम लोग जो थर्ड चार्ज पार्टिकल कंसीडर करेंगे ना अभी, थर्ड चार्ज पार्टिकल वो कहाँ पे होगा? देखो यहाँ पे होगा। इट लाइज क्लोजर टू द मैग्नीट्यूड ऑफ स्मॉलर चार्ज। इसका वैल्यू कितना? Q। कौन सा पॉइंट पे है? C पोजीशन पे ही है। ओके, तो इसका डिस्टेंस और लोकेशन में फाइंड करूंगा कैसे? देखो, लेट इट इज एट a डिस्टेंस x सेंटीमीटर फ्रॉम द चार्ज प्रेजेंट एट B। तो ये x सेंटीमीटर यहाँ से होने से A से कितना दूरी पर है अभी? ये कितना होगा? 20 प्लस x सेंटीमीटर होगा, और क्या 20 प्लस x, ये होगा तुम्हारा x सेंटीमीटर सपोज, तो ये हो जाएगा 20 प्लस x सेंटीमीटर। अभी और एक चीज ध्यान में रखो, ये नेगेटिव चार्ज ये क्यू को अट्रैक्ट कर लेगा, अभी इस साइड पे, इस साइड पे वो अट्रैक्ट करेगा। तो ये क्या होगा तुम्हारा? दिस फोर्स ऑन क्यू ड्यू टू पी, एफ बी वेक्टर। एंड इधर देखो, ये जो पॉजिटिव चार्ज दिखाई दे रहा है, ये क्यू को क्या करेगा रे? रिपेल कर देगा इधर, तो उसको क्यू को ऐसे रिपेल करेगा। तो रिपेल करेगा मीन क्या लिखेंगे हम लोग? दिस इज फोर्स ऑन क्यू ड्यू टू ए। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड शुड बी इक्वल टू एफ बी वेक्टर मैग्नीट्यूड। यही सॉल्व करना है हमको। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 8C, 8C एफ ए वेक्टर मॉड will be equal to एफ बी वेक्टर। एफ ए वेक्टर क्या होगा? मैग्नीट्यूड के इंटू एक चार्ज तुम्हारा क्यू, ए पे कितना चार्ज? 8 इंटू 10⁻⁻6, 8 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस कितना है? 20 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। वही यहाँ पे भी सेंटीमीटर स्क्वायर, हम लोग कन्वर्ट नहीं किए हैं अभी। देन एफ बी क्या होगा? के इंटू एक चार्ज तुम्हारा क्यू, एंड इन दोनों के बीच में कूलम फोर्स कितना होगा? सेकेंड चार्ज का मैग्नीट्यूड लेना चाहिए। कूलम फोर्स में हम लोग क्या ले रहे हैं? कूलम फोर्स इज इन्वॉल्व इन बिटवीन द टू चार्जेस, and we have to take the magnitude because F is proportional to the product of magnitude of two charges. तो सेकेंड चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना? 2 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइड बाई डिस्टेंस कितना रे? x सेंटीमीटर का स्क्वायर, दैट इज x स्क्वायर सेंटीमीटर। कैंसिल हो गया देखो, और बहुत सारा चीज कैंसिल होगा इसमें। 10⁻⁻6 क्यू के, 10⁻⁻6 क्यू के, अभी क्या हुआ? यहाँ पे 4 ही बचा। तो आंसर कितना हुआ देखो? 4/20 प्लस एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना? 1/x स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट लेने से क्या होगा? 2 डिवाइड बाई 20 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1/x। तो आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2x इज इक्वल टू 20 प्लस एक्स। तो 2x माइनस एक्स कितना होगा? x, x इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। ये क्या है? दिस इज द location of C from which charge? From -2 into 10⁻⁻6 coulomb charge. X means, as per our diagram, x is the distance of or location of charge q at C from the charge -2 into 10⁻⁻6 coulomb present at point B. Okay, तो यहाँ पे पता चल गया देखो, ऑलवेज न्यूट्रल पॉइंट और इक्विलिब्रियम पोजीशन तुम्हारा कहाँ पे लाई करेगा? दैट इज लाइंग क्लोजर टू द मैग्नीट्यूड ऑफ स्मॉलर चार्ज। बट इन बिटवीन टू चार्जेस होगा तो कब होगा? व्हेन बोथ चार्जेस आर लाइक।
व्हेन बोथ आर अनलाइक चार्जेस वो आउटसाइड में होगा एंड क्लोजर टू द मैग्नीट्यूड ऑफ स्मॉलर चार्ज। ये कंटेंट होने के बाद, ये कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के पास हम लोग चलेंगे अभी। ओके, नेक्स्ट पे चलो। क्या पूछ रहा है? व्हाट वुड बी द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू एल्युमिनियम स्फीयर्स ईच ऑफ मास 1 ग्राम सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 1 मीटर। सपोज ये है तुम्हारा एक एल्युमिनियम स्फीयर, एंड ये भी एक एल्युमिनियम स्फीयर, एंड इन दोनों के बीच में सेपरेशन कितना है? देखो सेपरेशन बिटवीन देम लेट इट बी, एंड क्वेश्चन तो दे रहा है लेट के, क्वेश्चन दे रहा है 1 मीटर सेपरेशन पे है दोनों, एंड और क्या दे रहा है? ये बोथ आर एल्युमिनियम स्फीयर ईच ऑफ मास 1 ग्राम, ये भी 1 ग्राम, ये आल्सो 1। तो यहाँ पे इसमें जितना चार्ज होगा उसमें भी उतना ही चार्ज होगा। तो सेपरेट बाय डिस्टेंस 1 मीटर इफ द चार्ज ऑन ईच स्फीयर इज 1% ऑफ टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन न्यूक्लियस ऑफ एनी वन ऑफ द स्फीयर। अच्छा, दोनों में से दोनों में चार्ज कितना? सेम टू सेम ही होगा। ओके, बोथ आर एल्युमिनियम स्फीयर, बोथ आर बीइंग तो आइडेंटिकल भी। ओके, बस बोथ आर आइडेंटिकल। नेक्स्ट देखो, सो क्यू का आंसर क्या दे रहा है? दैट इज द इंपोर्टेंट। व्हाट इज क्यू? क्यू इज इक्वल टू, क्वेश्चन क्या दे रहा है देखो, 1% of total positive charge, 1% of total positive charge of nuclei of any one of the sphere। भाई स्फीयर क्या है तुम्हारा? एल्यूमिनियम स्फीयर। 1% ऑफ टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एल्यूमिनियम स्फीयर। पहले हमको कैलकुलेट करना चाहिए व्हाट इज द टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस ऑफ एल्यूमिनियम स्फीयर। उसका 1% लेने से ही हम लोग स्मॉल क्यू दैट इज चार्ज एज पर द गिवन क्वेश्चन कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे कितना अमाउंट ऑफ एल्यूमिनियम दिया है? देखो गिवन मास क्या है? 1 ग्राम। तो इसको सॉल्व कैसे करोगे? देखो, तो गिवन दे रहा है, गिवन मास एल्यूमिनियम कितना? दैट इज इक्वल टू 1 ग्राम। तो इसको यूज करके हम लोग नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर पाएंगे या नहीं? नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे, कितना? गिवन मास बाई मोलर मास, गिवन मास बाई मोलर मास। तो गिवन मास कितना है? 1, मोलर मास क्या है उसका? 27। यह है नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ। तो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के बाद नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट कर पाएंगे। क्यों? 1 मोल, कितना अमाउंट ऑफ एटम्स आर देयर? 1 मोल पे हमारा 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स अवेलेबल। तो कितना मोल है अभी? 1/27 मोल्स। तो 1/27 मोल्स पे कितना होगा? 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 1/27 एटम्स ऑफ हुम? एटम्स ऑफ एल्यूमिनियम। एंड एल्यूमिनियम का एक ही एटम पे कितना इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है? बोलो 13, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर कितना? 13। तो पॉजिटिव चार्ज कितना होगा? 13e। तो एक एटम पे कितना? तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, कलर चेंज करके देखो, 1 एटम 13 इलेक्ट्रॉन्स। 1 एटम का चार्ज कितना? 13 इंटू। यस, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ कितना एटम्स? 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 1/27 नंबर ऑफ एटम्स पे कितना होगा? 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 1/27 इंटू 13। ई का वैल्यू क्या है? 1.6 इंटू 10⁻19 लॉन्ग। ये है तुम्हारा अमाउंट ऑफ चार्ज। इसमें ये वाला चीज, टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एल्यूमिनियम स्फीयर, दिस इज द वैल्यू। यस, सो उसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। देखो राउंडिंग प्लस नियरली इक्वल भी हम लोग फाइंड कर देने से अच्छा होगा। 13 नियरली इक्वल भी कट कर देने से 2 लिखो, इसको 6 ले जाओ, 6 ले जाने से ये कितना होगा?
नियरली 3 मिलेगा हमको, नियरली इक्वल टू 1.6 इंटू 3 दैट इज नियरली इक्वल टू 4.8 10 टू द पावर 23 माइनस 9 दैट इज 4। ये है तुम्हारा क्या है, टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑफ न्यूक्लियर ऑफ एल्युमिनियम स्फीयर। इसमें अभी कैलकुलेट करेंगे, अभी क्या है 1% मीन्स 1/100 दैट मीन्स 10 टू द पावर 2 एंड इसका वैल्यू क्या है नियरली 4.8 इंटू, ये एग्जैक्टली नहीं, नियरली 10 टू द पावर 4। तो नियरली कितना आ रहा है हमारा 4.8 इंटू 10 टू द पावर 2, ये है तुम्हारा क्यू का वैल्यू। एंड क्यू का वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद ये पूछ रहा है तुमको व्हाट विल बी द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यस, अभी उसको मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ एग्जैक्टली, यू हैव टू सॉल्व। तो कूलम्ब फोर्स कितना होगा, तो 10 F विल बी इक्वल टू कितना होगा आंसर K U इंटू क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू क्यू का वैल्यू 4.8 नियरली जो वैल्यू इंटू 10 टू द पावर 2 का स्क्वायर होगा डिवाइड बाई आर स्क्वायर 1 का स्क्वायर। ये जो भी आंसर मिलेगा ना, दिस इज नॉट योर एग्जैक्ट आंसर, दिस विल बी द बट अप्रोक्सीमेट आंसर, आसपास ही मिलेगा, ज्यादा डिफरेंस नहीं। यस, क्योंकि हम लोग यहाँ पे नियरली इक्वल टू में सोल्यूशन किए हैं, एग्जैक्ट करने से टाइम लगेगा। ओके, तो उसको सॉल्व करो, जितना जल्दी सॉल्व करोगे आराम से होगा। तो डेसिमल के बाद एक डिजिट तक हम लोग कैलकुलेट करने से हो जाएगा। ओके, 2 3 4 डिजिट सॉल्व करने का कुछ जरूरत नहीं। Okay, after the decimal only try to find out up to 1 digit, or if time is there, time is available, that is double digit भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये था तुम्हारा ये क्वेश्चन का कंटेंट। ओके, बार बार उसको देखो फिर से। तो गिवन ये जो क्वेश्चन है ना, टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑफ न्यूक्लियर एल्युमिनियम स्फीयर, ये फाइंड करना बहुत क्या है इंपॉर्टेंट चीज। तो गिवन मास दे रहा है, नंबर ऑफ मोल्स में लिखा हूँ 1 मोल पे जितना दिस मच एटम एंड 1/27 मोल्स पे दिस इज द नंबर ऑफ एटम्स एंड एक एटम में 13 इलेक्ट्रॉन, बस उसका चार्ज क्या होगा 13 E एंड इतना नंबर ऑफ एटम से कितना चार्ज होगा, दिस इज द अमाउंट ऑफ चार्ज। हो गया। तो स्टेप बाय स्टेप यू हैव टू फॉलो द प्रोसेस। ओके, देन देखो नेक्स्ट, the electron and proton in hydrogen atom are separated on average by a distance of about 5.3 10 to the minus 11 मीटर। तो ये एक हाइड्रोजन एटम सपोज ले जाओ, तो मैं जल्दी सॉल्व करूंगा। तो कैलकुलेशन तुम लोग करोगे, मैं बस प्रोसेस बोल रहा हूँ अभी देखो। तो इलेक्ट्रॉन क्या पे है, ये तुम्हारा प्रोटॉन दैट मींस प्लस ई, तुम्हारा इलेक्ट्रॉन माइनस सी, वेरी गुड। सेपरेटेड बाय ऑन एवरेज डिस्टेंस ऑफ अबाउट 5.3 10 टू द माइनस 11 मीटर। तो यहाँ पे दोनों का डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन ये वाला चीज 5.3 10 to the minus 11 as per the question. So R is equal to 5.3 10 to the power minus 11 meter. Perfect. पूछा है वो find the magnitude of electric force and gravitational force that each particle experience on each other and the ratio of electric force and gravitational. Hints दे रहा हूँ तुमको, इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होगा K इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज ऑफ प्रोटॉन डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो इसको कैलकुलेट करोगे 9 इंटू 10 टू द 9 चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों का सेम टू सेम 1.6 10 टू द माइनस 19 का होल स्क्वायर, देन डिस्टेंस क्या है 5.3 इंटू 10 टू द माइनस 11 का होल स्क्वायर। वेरी गुड। तो इसको सॉल्व करोगे, दिस इज द आंसर इन न्यूटन होगा। देन ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, एफ जी इज इक्वल टू कैपिटल जी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइड बाई आर स्क्वायर। मास ऑफ कैपिटल जी का वैल्यू 6.67 10 टू द माइनस 11, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 10 टू द माइनस 31 kg, मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg होल डिवाइड बाई आर स्क्वायर मीन्स 5.3 10 टू द माइनस 11। इसको कैलकुलेट करोगे लेट इट बी वाई न्यूटन मिलेगा एंड लेट इसका आंसर एक्स न्यूटन। 10 एफ ई बाई एफ जी क्या पूछा है वो
इलेक्ट्रिक फोर्स बाय ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो। आंसर कितना होगा, x बाई वाई। ओके, तो सॉल्व इट। कमेंट सेक्शन पे उसका आंसर ही मैसेज करो। देखो कितना आसान हो गया। तो यही है तुम्हारा जनरल क्वेश्चन, आराम से कर पाओगे। नेक्स्ट कर लो। ओके, तो क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी सेम नंबर ऑफ एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी एडेड टू ईच न्यूट्रल लीड स्फीयर टू बैलेंस द फोर्स ऑफ ग्रेविटी बिटवीन देम। इन दोनों के फोर्स ऑफ ग्रेविटी। एंड सेपरेशन दोनों के बीच में क्या है, दोनों के बीच में सेपरेशन दे रहा है तुम्हारा 1 मीटर। ये दोनों के बीच में सेपरेशन 1 मीटर। इलेक्ट्रॉन देने से उसका चार्ज माइनस क्यू होगा, इसका भी माइनस क्यू होगा। तो हाउ मेनी सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी एडेड टू ईच न्यूट्रल स्फीयर। इनिशियली दोनों ही न्यूट्रल ही थे, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐड होने से सेम अमाउंट पे वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएंगे बस। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना ऐड होगा होना चाहिए। लेकिन इनिशियली इन दोनों के बीच में क्या था, इसका मास कितना 1 kg, इसका मास भी 1 kg। तो इन दोनों के बीच में इसके ऊपर क्या अप्लाई हो रहा है अभी, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस साइड। तो ये था तुम्हारा, दिस इज योर ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्लियर, दिस इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। बस ये था तुम्हारा एफ जी वेक्टर। ये किसके साथ बराबर होगा, बैलेंस हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये चार्ज होने से क्या होगा, लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर। तो अभी चार्ज देने के बाद, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्ट करने के बाद ये माइनस क्यू इसको रिपेल कर लेगा। अभी तो रिपेल करने से ये साइड पे क्या मिलेगा हमको, इस साइड पे हमको मिलेगा एफ ई, एफ ई वेक्टर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एफ ई इज इक्वल टू एफ जी। एफ ई क्या है बोलो, के क्यू इंटू क्यू मैग्नीट्यूड लेना चाहिए डिवाइड बाई आर स्क्वायर। एफ जी क्या है, जी, हाँ, मास ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, मास ऑफ सेकंड पार्टिकल दैट इज 1 दे रखा है, जी इंटू मास 1 kg, 1 kg डिवाइड बाई कितना, आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर तो कैंसिल हो गया। के का वैल्यू कितना, 9 इंटू 10⁹। यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू जी का वैल्यू 6.67 10⁻11। वेरी गुड। देन क्या होगा, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻11 डिवाइड बाई 9 इंटू 10⁹। एंड वी नो क्यू इज इक्वल टू एन ई, क्यू इज इक्वल टू एन ई। तो क्यू स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, एन स्क्वायर ई स्क्वायर। तो 6.67 इंटू 10⁻11 डिवाइड बाई 9 इंटू 10⁻9। एंड एन स्क्वायर का वैल्यू अभी मिलेगा, डिवाइड करो ई स्क्वायर। तो 6.67 इंटू 10⁻11 डिवाइड बाई 9 इंटू 10⁻9 डिवाइड करोगे ई स्क्वायर 1.6 10⁻19 का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करने से जो भी मिलेगा हमको, ओके, ये तुम्हारा एन स्क्वायर। उसके बाद क्या लेना चाहिए, एन विल बी इक्वल टू ये चीज का स्क्वायर रूट एंड दिस विल बी द फाइनल आंसर। This much amount of excited electron must be required to add to the both neutral lead sphere so as to balance the force of gravity and force of electrostatic force between them. Ready? In this way you have to proceed. Okay. चार्ज क्यू इज डिवाइडेड, ये क्वेश्चन एक्चुअली हो चुका है हमारा प्रीवियस लेक्चर पे, लेक्चर नंबर 4 पे। तो नो नीड टू सॉल्व द क्वेश्चन अगेन, वी आर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्या दे रखा है, two particles having mass m and charge q each are placed each are to be placed on a rough horizontal surface with coefficient of static friction. Okay, ये तुम्हारा rough horizontal surface, suppose this is your rough horizontal surface. रेडी, इसके ऊपर
हो गया। तो टू पार्टिकल्स having mass m and charge q, इसका चार्ज भी q, इसका चार्ज भी, placed on a rough horizontal surface with coefficient of friction, let the coefficient of friction be mu। अभी ये दोनों क्या करेंगे रे, तो ये q को, ये दिस q will repel, रिपल्सिव फोर्स होने से ये उसके ऊपर रिपल्सिव फोर्सेस अप्लाई हो रहा है। तो दिस इज योर एफ इलेक्ट्रिक फोर्स, सॉरी इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो व्हाट कैन बी द मिनिमम सेपरेशन बिटवीन देम सो दैट दे रिमेन स्टेशनरी। अच्छा, ये उसको रिपेल करने से वो तो ऐसे चला जाएगा ना, बोल रहा है ये रिमेन स्टेशनरी है, मींस के पीछे पे इस साइड पे क्या अप्लाई हो रहा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ही अप्लाई हो रहा है। दिस इज द फ्रिक्शनल फोर्स। तो उसका वेट क्या होगा, वी नो का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है इसमें, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन लेट इट बी म्यू। तो एफ का वैल्यू क्या है एक्चुअली, म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन। एंड इसमें नॉर्मल रिएक्शन क्या है, देखो का वेट क्या है, वेट इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, का वेट इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। एंड ऊपर क्या है, देखो ऊपर क्या है हमारा, नॉर्मल रिएक्शन व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कांटेक्ट। तो दिस इज नॉर्मल रिएक्शन, दिस इज, एंड वाई एक्सिस पे बॉडी का मूवमेंट क्या है, नहीं हो रहा है, मींस नॉर्मल रिएक्शन इज बैलेंस्ड बाय द वेट एनर्जी। तो फ्रिक्शन का फोर्स क्या हुआ, फ्रिक्शनल फोर्स F इक्वल टू म्यू mg। As per the question, as mass m is stationary, mass m is stationary, which implies F is equal to म्यू mg। तो इन दोनों के बीच रिलेशन क्या होगा, k इंटू क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू mg। तो k का वैल्यू क्या है, 1/4 इप्सिलॉन नॉट इंटू ये क्या होगा क्यू स्क्वायर, ये म्यू mg को इधर ले आओ डिवाइड बाई म्यू mg, एंड आर स्क्वायर को आर को राइट साइड पे ले जाओ। तो आर का वैल्यू क्या हुआ, 1/4 इप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई म्यू mg, एंड टोटल चीज का स्क्वायर रूट ही लेना चाहिए। दिस विल बी द आंसर, दिस शुड बी द मिनिमम सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस। हो गया, देखो आसान से, दोनों का चार्ज दे रहा है क्यू। तो ऐसे ही सॉल्व करना चाहिए तुमको टोटल चीज को, हर एक चीज को ऐसे ही सॉल्व करने से हो जाएगा। हो गया, तो टू पार्टिकल्स ऑफ चार्ज क्यू एंड मास m, वेरी गुड। आई थिंक ये आसान क्वेश्चन है। Discuss the various forces and angles involved in two identical simple pendulum with charge box। अच्छा Q1 Q2 ये दोनों का वैल्यू सेम ही है, यस दोनों का वैल्यू क्या है Q एंड Q, हैंगिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट। तो दोनों पेंडुलम बॉब का चार्ज सेम होने से क्या होगा, बराबर होने से दे विल रिपेल ईच अदर, एंड रिपेल होने से अभी ऐसे ही थे, ओके, बिफोर रिपल्सन आफ्टर रिपल्सन ऐसे हो जाएंगे, एंड दे आर सस्पेंडेड फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट। तो हम लोग डायग्राम कैसे ड्रा करेंगे, देखो यू हैव टू प्रोसीड, व्हाट्स द डायग्राम। ये था तुम्हारा हैंगिंग पोजीशन, यहीं से ये एक पेंडुलम बॉब एंड दिस इज अनदर पेंडुलम। हो गया, एंड ये है तुम्हारा वाई एक्सिस। तो यहाँ पे दे रहा है चार्ज क्यू, दोनों का चार्ज कितना क्यू, एंड ये एंगल कितना होगा, सपोज ये थीटा होगा, ये भी कितना होगा थीटा। ये क्या है तुम्हारा स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग पे कौन सा फोर्स अप्लाई होगा, टेंशन फोर्स। एंड इसका मास कितना दे रहा है, नथिंग इज मेंशन, लेट उसका मास क्या है m ले जाओ, कभी मास m कभी मास m। तो बिकॉज ऑफ दिस रीजन इसका वेट क्या होगा, इट्स वेट इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। इसी एक को देखो, इसका वेट कितना होगा mg, और क्या होगा
ये क्यू को क्या करेगा रे, रिपेल करेगा। अभी इसके ऊपर ऐसे फोर्स अप्लाई हो रहा है, ये कौन सा फोर्स अप्लाई हो रहा है, दैट इज एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एफ ई। एंड ये टेंशन टी दिखाया जा रहा है तुमको, क्या दो ही कंपोनेंट मिलेगा या नहीं, ऑब्वियसली मिलेगा। उन दोनों का कंपोनेंट क्या है, देखो दिस विल बी वन कंपोनेंट, दिस विल बी अनदर कंपोनेंट, दिखाया जा रहा है सबको बस। तो ये एंगल थीटा मीन्स ये क्या होगा, थीटा होगा। तो एंगल अटैचिंग कंपोनेंट कॉस कंपोनेंट, दिस विल बी टी कॉस थीटा एंड दिस विल बी टी sin थीटा। क्लियर, ओके। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स अप्लाई होने के बाद ये दोनों कुछ ना कुछ फाइनाइट सेपरेशन पे वो इक्विलिब्रियम पे रह जाएंगे। यस, आफ्टर द रिपल्सिंग, आफ्टर द रिपल्सन बिटवीन द टू पेंडुलम बॉक्स और चार्ज पेंडुलम बॉक्स, आफ्टर ए फाइनाइट सेपरेशन, ओके, दे रिमेन इन इक्विलिब्रियम। दैट मीन्स हम लोग यहाँ पे बोल पाएंगे एफ इज इक्वल टू टी साइन थीटा। तो एट इक्विलिब्रियम टी साइन थीटा इज इक्वल टू एफ ई एंड टी cos थीटा इज इक्वल टू दैट विल बी एम जी। तो इन दोनों को डिवाइड करने से क्या मिलेगा, ये तुम्हारा 1, ये तुम्हारा 2। तो इक्वेशन 1 डिवाइड बाई इक्वेशन 2 क्या मिलेगा हमको, टी साइन बाई टी कॉस, दैट इज टी कैंसिल हो गया, tan थीटा इज इक्वल टू एफ ई बाई एम जी। वेरी गुड। तो थीटा कितना होगा, tan इनवर्स एफ ई डिवाइड बाई एम जी। ये था तुम्हारा, पूछा था ना क्वेश्चन, क्या पूछ रहा है, वेरियस एंगल इन्वॉल्व। तो थीटा इज एंगल इन्वॉल्व एज पर द क्वेश्चन। एंड वेरियस फोर्स, टेंशन टी को कैसे कैलकुलेट करेंगे देखो। अच्छा, tan थीटा इक्वल टू एफ ई बाई एम जी। सो इसका है कि राइट एंगल ट्रायंगल में ड्रा करूंगा, तो बेस करके मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा करूँ। राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा करने से क्या मिलेगा, ये एंगल को मैं थीटा ले रहा हूँ, तो थीटा लेने से tan थीटा कितना होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो ये तुम्हारा परपेंडिकुलर एफ ई एंड बेस क्या है एम जी। देखो ये ट्रायंगल पे tan थीटा कितना मिल रहा है, एफ ई बाई एम जी एज पर द इक्वेशन। तो हाइपोटेनस क्या होगा, एफ ई स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर जी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। परफेक्ट। तो यहाँ पे लिखा हूं मैं टी कॉस थीटा इक्वल टू एम जी। तो टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी। तो कॉस थीटा का आंसर क्या मिलेगा हमको, टी इंटू कॉस थीटा कितना मिलेगा, पी बाई एच। तो एम जी डिवाइड बाई सही तरीके से लिखा हूं मैं, पी बाई पी। परफेक्ट। एंड हो गया, ठीक है। एम जी बाई बी बाई एच, दैट मीन्स एफ स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर जी स्क्वायर का स्क्वायर रूट, दिस इज इक्वल टू एम जी। एम जी कैंसिल होने से क्या मिलेगा, टेंशन टी इज इक्वल टू एफ स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर जी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। वेरियस एंगल इन्वॉल्व एंड वेरियस फोर्स इन्वॉल्व, ये दोनों को हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। क्लियर, आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो ये लेक्चर पे हम लोग और एक क्वेश्चन छूट गया, इफ पॉसिबल आई विल सॉल्व इट इन नेक्स्ट क्लास। तो देखो ये टोटल लेक्चर पे हम लोग एक 4 नोट पॉइंट्स को डिस्कशन किए थे, तो ध्यान में रखोगे। जो फर्स्ट पॉइंट था एफ वर्सेस 1/r² का ग्राफ, दैट विल कम इन योर एग्जाम एक्चुअली, दैट इज अ सीबीएसई रिलेटेड क्वेश्चन और एंट्रेंस रिलेटेड क्वेश्चन आल्सो भी। तो बेसिकली इन लेक्चर नंबर 5 वी हैव डिस्कस्ड सर्टेन न्यूमेरिकल्स based upon the different types of numericals based upon Coulomb's force। लेक्चर नंबर 4 पे भी वही था। एंड लेक्चर नंबर 5 में भी हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, एक छोटा सा कंटेंट, उसको खत्म करने के बाद उसका जो एप्लीकेशन है न्यूमेरिकल पे, बेसिकली वी विल फोकस अपॉन दैट थिंग। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट अपडेट एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। एंड ट्राई टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, ओके, दिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू। एंड शेयर करने से तुम्हारा दोस्त को भी सपोर्ट मिलेगा। So stay tuned for next update. Thank you and have a nice day ahead.